Hi, everybody. Good evening, and thank you for joining me this evening on this Facebook Live session. First of all, I'd like to express my deepest gratitude to each one of you for being here and sharing these moments with me. Now, since our Prime Minister declared 21 days of complete shutdown, so I decided that why not do something with all our participants, all my Facebook followers, so that we can interact and learn a few things from one another. So here I am. I will be with you for the next 21 days, except on 27th March when I'm going to be a little busy in another webinar. But otherwise, from now until 14th of April, I will be there live on Facebook from 9:30 onwards. So ideally from 9:30 to 10, it will be a session wherein you can ask questions. You can, I'm going to share some tips, tools, strategies. And from 10 onwards, the expectation is, the hope is that we'll do a collective meditation because we need to raise the collective consciousness of the planet. So if we can, maximum number of people can meditate at the same time at about 10 o'clock sharp, we can, create a very powerful vibration across the universe to actually deal with the current, corona pandemic. Okay, so just to make sure that I'm able to hear you, can you type yes, that yes, you can hear me? And type yes in the comment so that I can make sure that you are able to hear me. Great. Noor said, can you hear me, please? If you can just say yes, just type yes. Okay, hi Neeraj. Nice to see you. Great. I think we'll have a few people joining in, but I'm going to stick with the schedule because we have to do the meditation at 10 o'clock. The message has gone out a little late to people today, so let's see how many people join. Doesn't matter. We'll get started. Okay. So the what I intend to cover in these 21 days is I'm going to share with you specific tools and techniques. I'm going to take you through some exercises so that we can deal with the current situation. The current situation is obviously not something that any one of us expected. This is not a situation which we have dealt with earlier. ये हमारे लिए बहुत नया है. इस तरह का सिचुएशन हमने ना तो कभी देखा है, ना कभी सुना है इसके बारे में. एपिडेमिक्स के बारे में सुना है, पेंडेमिक्स के बारे में सुना है, लेकिन हमारे लाइफ टाइम में हमने इसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो ये पहली बार है जो हमारे लिए इतना बड़ा कुछ हो रहा है जिससे कि पूरी दुनिया अफेक्टेड है. जनरली इट इज वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट यहाँ पे हम एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे पूरी दुनिया इस चीज में जुड़ी हुई है, इस प्रॉब्लम से डील कर रही है. So I thought, why not share with you some few simple tools, techniques, strategies which can make your life a little better during this difficult times. Okay. So let me see what all I want to cover today. 21 डेज में हम एक तो साथ में रहेंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम लोगों से इसको शेयर करिए ताकि दिन ब दिन वी कैन हैव मोर पीपल बेनिफिटिंग फ्रॉम दीज सेशंस. ये फेसबुक लाइव सेशन है, तो ये सेशन का रिकॉर्डिंग भी फेसबुक पे रहेगा, तो आप उसको भी जरूर लोगों के साथ में शेयर करिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट ले सके. ओके. आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू आस्क क्वेश्चंस. अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछेगा, so that I want to try and share as many tools and techniques I have which can help you deal with the situation. Okay, तो actually देखा जाए तो situation से deal करना मतलब actually तो हमारे mind से ही deal करना है, क्योंकि अगर ये mind disturb हो गया तो सारी चीजें में disturbance हो सकता है, right? So our goal is to keep the mind calm and peaceful while we are going through these difficult times. ये टाइम निकलना है, ये तो पक्का है, ये तो कुदरत का नियम है. Nothing is ever constant. Okay, so I'm going to start with the first principle of nature, and that is the law of impermanence. Law of impermanence ये कहता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, हमेशा बदलते रहती है. तो जैसे दिन के बाद रात होती है, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद फिर से रात होती है.
सीजन्स भी चेंज होते रहते हैं, विंटर के बाद समर, समर के बाद यू नो फॉल, फॉल के बाद विंटर, फिर वापस समर। तो ये साइकिल हमेशा चलते रहे, स्टॉक मार्केट अप डाउन होते रहता है। इस तरह से डिफिकल्ट सिचुएशंस भी कभी भी परमानेंट नहीं होते हमारी जिंदगी में, पूरे प्लेनेट पे। डिफिकल्ट सिचुएशंस आर नेवर परमानेंट, सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी फॉलोड विद गुड सिचुएशंस। ओके, एंड बी रेडी आफ्टर गुड सिचुएशंस, अगेन देयर विल बी डिफिकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ। तो द गुड न्यूज इज कि ये जो अभी करंट सिचुएशन है ये भी परमानेंट नहीं है, ये भी जाना ही जाना है। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, डिफिकल्ट सिचुएशन और जो अच्छा आने वाला समय है, उसके बीच में जो समय है, इसको हम कैसे निकाले, मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को कैसे संभाले, हमारे परिवारों को कैसे संभाले। खास करके इस करंट सिचुएशन में जहां पे बहुत सारे, इट इज अ बिग चैलेंज वे वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अगले 21 डेज लॉकडाउन है, उसके बाद भी क्या होगा, और एग्जैक्टली इसके बाद क्या होगा ये हमें किसी को पता नहीं है। So there is obviously a lot of uncertainty. There is, fear. There is worry. There is anxiety. काफी सारे लोगों का मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। Okay, so let me share a couple of things with you. Uh, I'm going to share with you one of the most important principles that I have learned from my mentor. And that principle is called, a very simple principle, which is called E plus R equals to O. Okay, I'm going to type it here. E plus R equals to O. Now इसका मीनिंग क्या होता है? E का मीनिंग होता है इवेंट्स। इवेंट्स के मतलब होता है घटनाएं। इवेंट्स, R stands for response, O stands for outcome. Outcome का मीनिंग है results. So this is the formula that I want to, explain to you. This is the formula which actually changed my life. क्योंकि दुनिया को, जिंदगी को, परिस्थितियों को देखने का मेरा नजरिया बदल गया जब से ये प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला को मैंने समझा है। युदान पूछ रहा है मुझे कि सर पूरे दिन घर पे बैठ के माइंड में नेगेटिविटी बढ़ रही है, एनी वे टू डील विद दैट? युदान, एग्जैक्टली दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस फेसबुक लाइव सेशन। ओके, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू लॉट्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स, सो जस्ट होल्ड ऑन फॉर सम टाइम। सो इवेंट्स, घटनाएं। घटनाएं वो चीज होती है जो हमारे बाहर होती है। फॉर एग्जाम्पल, वेदर सडनली चेंज हो गया, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो गई, डीमोनेटाइजेशन अप्लाई हो गया, जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज का रेट चेंज हो गया, कोरोना वायरस आ गया। ये सारी घटनाएं हैं, ये घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है। नन ऑफ दीज इवेंट्स आर इन आवर कंट्रोल। ओके, क्या हम इस इवेंट को रोक सकते थे? अब होना था तो हो गया, इसको तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन ई के बाद जो लेटर है जिसको हम कहते हैं आर, इसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। मतलब घटना तो हो गई है, लेकिन हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। ये रिस्पॉन्स हमसे कोई छीन नहीं सकता। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घटना को ब्लेम करते रहते हैं, वो घटना के बारे में बातें करते रहते हैं, कोरोना वायरस आ गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या करेंगे। सो ज्यादातर लोगों का फोकस होता है घटना के ऊपर। क्योंकि घटना के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो वहां पे हम उस घटना को लेकर के किसी को ब्लेम करें, या तो चाइना को ब्लेम करें या किसी और देश को ब्लेम करें, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये घटना तो हो चुकी है। लेकिन इसको हम कैसे रिस्पॉन्ड करें, मतलब इस परिस्थिति में हम कैसे सोचते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारे माइंड में हम कौन से पिक्चर्स देखते हैं, हम इस परिस्थिति में क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में। तो अगर हमारा रिस्पॉन्स देखो, रिस्पॉन्स और जिस तरह का रिस्पॉन्स होगा उस तरह के हमें मिलेंगे आउटकम्स। आउटकम का मीनिंग क्या है? रिजल्ट्स। मतलब हमें रिजल्ट्स किस तरह के मिलेंगे? इट विल प्योरली एंड प्योरली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वी हैव गिवन टू द इवेंट। नाउ रिस्पॉन्स इज वेयर अवर रियल पावर लाइज। क्योंकि ये रिस्पॉन्स हमसे कोई नहीं छीन सकता। हर परिस्थिति में हम कैसे सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हम तय कर सकते हैं। ओके, अब देयर आर एसेंशियली टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस। एक होता है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स। तो ये परिस्थिति हो चुकी है, इसमें हम सिर्फ दो टाइप के रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं, या तो हम नेगेटिव या तो हम पॉजिटिव दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? दिन भर टीवी के सामने बैठे रहो, उसके न्यूज न्यूज को पढ़ते रहो, दूसरों के साथ में डिस्कस करते रहो, टेंशन लेते रहो, के न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहो, व्हाट्सएप में न्यूज
वीडियोस, नेगेटिव न्यूज पढ़ते रहो। अब ये सारी चीजें अगर मैं दिन भर करते रहूंगा, दैट इज वन काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, ओके। जो मेरे एक्शंस है वो मैं कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा डर कम होगा कि ज्यादा होगा? मेरे एंजाइटी या फेयर ये कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा डर और एंजाइटी होंगे उतना ही ज्यादा हमारा माइंड काम नहीं करेगा। So one of the negative responses looking at all the negative news around us. Okay. The second response could be that मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, मैं कुछ काम नहीं कर पाता हूँ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं दोस्तों के साथ में वही चीज डिस्कस करते रहता हूँ। तो उससे मुझे कोई फायदा तो होता नहीं है। इट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स। और जैसे ही मेरे माइंड में नेगेटिविटी बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली और नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट करूंगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि हम जो सोचते हैं एग्जैक्टली वही चीज हम अट्रैक्ट करेंगे। Okay? Nipun Agarwal says, sir, give some creative ideas to do during the day so that we can become productive and not lethargic. Yes, Nipun, I'm coming to that. I'm just giving you some background and then I will surely share with you some techniques before we end the session today. Okay? ग्रेट। सो ये हो गया नेगेटिव रिस्पॉन्स। और दूसरा है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब कोरोना वायरस हो गया, पूरे दुनिया में फैल चुका, 21 डे लॉकडाउन हो गया, ये सारी घटनाएं हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन उसको हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स कैसे दे सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि जो समय हमें कभी मिलता नहीं है बिजी लाइफ में, वो समय हमें मिल गया। तो हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि इस समय में मैं क्या कर सकता हूँ। जो मेरे आसपास जो परिस्थिति है, जो मेरे पास रिसोर्सेस है, वट एवर आई हैव अवेलेबल विथ मी, वॉट कैन आई डू? So first thing I can do is take better care of my health. Maybe I can improve my health in this situation. So I can focus completely on my wellness. That means सुबह मैं जल्दी उठ जाऊं, फिर थोड़ा सा योगा करूं। बिकॉज बाहर जाके एक्सरसाइज करना मना है अभी। तो घर में हम अगर अच्छे अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू एट होम इज प्राणायाम एंड योगा। Now, अगर आपने किसी से ट्रेनिंग नहीं लिया है या आपने आपने कभी योगा या मेडिटेशन या प्राणायाम किया नहीं है, तो आप बाबा रामदेव की बहुत ही अच्छी सीडी है जो प्राणायाम और योगा सिखाते हैं। इट इज 30 to 45 minutes पैकेज विच इज अवेलेबल। यूट्यूब पे भी है, सीडीज भी अवेलेबल है। तो अभी तो शायद सीडी भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन यूट्यूब के ऊपर उनका पूरा प्रोग्राम है जो 45 मिनट्स का है। आप सुबह उठ करके पहले उसको लगा दीजिए और प्राणायाम करिए। The first thing you should do is pranayam and yoga. The reason you have to do pranayam is because pranayam में खास करके कपाल भारती एंड जो अनुलोम विलोम है, उससे हमारे माइंड में पॉजिटिविटी भर जाती है, नेगेटिविटी सारी निकल जाती है। एंड ऑब्वियसली इट इम्प्रूव्स योर हेल्थ, आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहेगी, दिन भर काम करने का मन करेगा, कुछ अच्छा करने का मन करेगा। तो सबसे पहला पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये हो सकता है कि हम अपने मेंटल वेलनेस को संभालें। यू कैन स्टार्ट बाय डूइंग योगा। ओके। द सेकेंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स कुड बी कि क्या मैं मेरे स्किल्स को अपग्रेड कर सकता हूँ? कैन आई अपग्रेड माई स्किल्स व्हेल आई एम सिटिंग एट होम? क्योंकि जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको तो शायद ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग अभी फिलहाल फ्री है, they can definitely upgrade their skills. So they can upgrade their technical skills, they can upgrade their personal development skills. हर तरह के कोर्सेज अवेलेबल है आज ऑनलाइन, और वो भी बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में अवेलेबल है। So let me suggest to you two sites which I generally use. One is a site called Udemy, udemy.com, and second is a site called Coursera, Course era.com. आप इसमें जाइए और आपको यूडेमी इज ब्यूटीफुल, आई यूज यूडेमी ऑल द टाइम। वहां पे जाएंगे तो आपको हर तरह के कोर्सेज मिलेंगे। तो आप कोई भी कोर्स को लेकर के आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। सो माय सजेशन इज डेवलप योर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टीम मैनेजमेंट, मतलब जो टॉपिक चाहिए वो सारे टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है। आपको वहां से सर्टिफिकेशन भी मिलता है। So I think that is one of the best things to do is to really upgrade your skills. Okay, that's a positive response, right? The third thing is you can do is समय ज्यादा है तो you can develop more deeper relationships. बच्चों के साथ टाइम निकालना, स्पाउस के साथ टाइम निकालना, लाइफ को प्लान करना कि आगे मुझे 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में क्या करना है। देखो, दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू सेट योर विजन एंड योर गोल्स कि हम अपने जिंदगी में क्या करना है। So I will, in the next 21 days, as we move forward, I will share with you specific tools and techniques. Okay? अभी तो मैं जनरल गाइडेंस दे रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं।
कि बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. So you can develop, deeper relationships. You can also coach and mentor other people. अगर आपके अंदर कोई स्पेशल टेक आपके अंदर कोई स्पेशल स्किल है, टैलेंट है, तो आप दूसरे लोगों को गाइड कर सकते हो, कोच कर सकते हो, क्योंकि इस समय तो इतनी मुश्किलें हैं, लोगों को इतनी परेशानियां हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे. तो अगर आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो व्हाई नॉट शेयर इट विद अदर्स, बिकॉज पीपल नीड इट बैडली टुडे. ओके, जैसे मैं अभी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ. जनरली तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, but I said why not I start sharing these things with people at this moment, because इससे मेरा भी टाइम अच्छे से यूटिलाइज होता है, और कुछ लोगों की जिंदगी में अगर बदलाव होता है तो उससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है, राइट? सो आई स्टार्टेड डूइंग दिस एंड आई सेड लेट मी कमिट माई सेल्फ टू 21 days. खाली एक दिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, 27th को, जिस दिन मेरा एक दूसरा वेबिनार है विच आई विल टॉक अबाउट बिफोर आई एंड दिस सेशन टुडे. ओके. बहुत सारे अनफिनिश प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसको हम कंप्लीट कर सकते हैं. जैसे कितनी सारी चीजें जो हम बैक बर्नर पे डाल देते हैं ये सोच के कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन वो समय कभी मिलता ही नहीं है. तो अभी समय मिला है तो व्हाई डोंट वी मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स एंड स्टार्ट डूइंग दैट. इट कुड आल्सो इंक्लूड थिंग्स लाइक क्लीनिंग अप योर हाउस, क्योंकि घर के अंदर ही इतना सारा क्लटर होता है, हर जगह पे चीजें पड़ी होती है. तो व्हाई नॉट क्लीन अप आवर हाउस, declutter the house, do all those things which are normally not possible in busy days. Okay. You can also work on your finances. You can also do things like update your net worth statement. देखो कि अभी फिलहाल क्या आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो. अगर ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग का अगर आप कोई प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो तो वो अटेंड करके वहां पे थोड़ा सा इनकम जनरेशन कर सकते हो. बट यू कैन फोकस ऑन क्रिएटिंग पैसिव इनकम सोर्सेस, मतलब एटलीस्ट आइडिया जनरेशन कर सकते हो अभी, और पूरा प्लान बना सकते हो, ताकि जैसे ही फिर से नॉर्मल से आ जाए तो यू गोइंग टू लिव अ फैंटास्टिक लाइफ. ये टाइम, मेरे दोस्तों, ये टाइम कभी मिलता नहीं है, और ये टाइम शायद इस तरह का समय तो कभी मिलेगा आगे जाके, ये कोई भरोसा नहीं है. 21 days, इमेजिन सिटिंग एट होम विथ योर फैमिली मेंबर्स एंड हैविंग ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. ऐसा तो मौका कभी नहीं मिलेगा, तो इसको हम एक पॉजिटिव तरीके से देख सकते हैं. एंड वी कैन यूटिलाइज दीज 21 days टू रियली रियली be prepared for the beautiful time that is going to come up. Okay, so we can definitely do that. Now, since we are almost at 9:50, in another 10 minutes, we'll do a meditation. But in 10 minutes, I would like to give you some specific tools and techniques which you can follow from tomorrow onwards or from today onwards. और ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज देखिए हम कितना भी सीखे, कितना भी करें, लेकिन अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा. I would like to strongly suggest a few things which I would, wish that each one of you applies, and then tomorrow you can report how you felt after, doing those things for one day, right? So first thing I would like to suggest is, अगर आपको मॉर्निंग में एक बार अपडेट चाहिए कोरोना वायरस का तो ले लीजिए. ओके, व्हाट इज द सिचुएशन. आपको कोई काउंट चाहिए कि कहाँ पे कितने लोग अफेक्ट हुए हैं, कितने लोगों की डेथ हुई, एक बार चाहिए तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन उस न्यूज में घुस मत जाइए, उसको पूरी तरह से घुस के उसको फील करना, दूसरों के साथ शेयर करना मत करिए. एक बार आप सुबह देख लो, और वो भी अर्ली मॉर्निंग उठ के नहीं. आफ्टर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, फॉर द फर्स्ट 2 hours, keep yourself free of any technology. No phones, no TV, no internet, no nothing. The first 2 hours I'm going to give you work. अपने माइंड को संभालने के लिए वो काम देंगे. उसके अलावा कुछ नहीं करना है पहले 2 घंटे. ओके. तो उसके बाद अगर आप 10-11 बजे एक बार न्यूज चेक करना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज न्यूज देखना बंद कर दो. जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको वैसे भी पहुंच जाएंगे, डोंट वरी, कहीं ना कहीं से वो न्यूज तो आ ही जाएगा. ओके, बट यस, इफ यू वांट टू टेक सम न्यूज, रीड इट वंस, एंड देन दिन भर सारी नेगेटिविटी से दूर रहिए. डोंट ट्राई टू फाइंड आउट कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कितने लोग गुजर गए, बिकॉज एवरी टाइम यू रीड दिस न्यूज यू आर फोकसिंग योर अटेंशन ऑन द सेम थिंग, कोरोना 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 कोरोना. द प्रॉब्लम इज हमारा माइंड इतना पावरफुल है. हम माइंड के बारे में बात करेंगे अगले 21 दिनों में. हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि जिस चीज को आप माइंड में पकड़ के रखोगे, जबरदस्ती से, जबरदस्त तरीके से पकड़ रखोगे, वो चीज छोड़ेगी नहीं, वो चीज बल्कि बढ़ेगी. तो आई वांट टू मेक श्योर दैट वी लीव एंड चेंज आवर कॉन्शियसनेस. जो चीज अभी हम माइंड में पकड़ रहे हैं उससे अच्छा है कि वो चीज पकड़ो जो आप चाहते हो.
सो नो न्यूज, नो व्हाट्सएप। मतलब व्हाट्सएप आप कम्युनिकेशन करिए, लेकिन ज्यादा कोरोना के न्यूज में ज्यादा घुसिए मत। टीवी देखना बंद, न्यूज़पेपर्स बंद, व्हाट्सएप बंद, सब कुछ बंद। एक बार सुबह अपडेट ले लिया, उसके बाद सारा दिन बहुत सारी एक्टिविटीज मैं आपको दूंगा, वो आपको करना है ताकि आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और अपने आने वाले कल के लिए तैयार हो जाए। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, व्हाट्सएप, टीवी, न्यूज। दिन भर बंद करना है उसको। उसके बारे में बात करना छोड़ दो। समझो कोई दोस्त आपको फोन कर रहा है, कोई रिश्तेदार फोन कर रहा है और वही चीजें शुरू कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे परेशानी। देखिए, जितना आप उस वाइब्रेशन में आओगे उतना ज्यादा क्रिएशन होगा। और हमारा मेन पर्पस इस 21 डे प्रोग्राम का ये है कि हमें पूरी कॉन्शियसनेस को बदलना है। कॉन्शियसनेस मतलब सोच को बदलना है। जैसे हम सोच बदलेंगे, हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस बदलेंगे। और कलेक्टिवली अगर ये चीज हम करते हैं तो उसका पावर बहुत ही ज्यादा होता है। क्वांटम फिजिक्स ने ये प्रूव किया है कि जब when multiple people hold the same thought together in their mind at the same time, the power of the field which is created is square of the number of people holding the thought together. तो फॉर एग्जाम्पल 100 लोग मिल करके अगर एक ही चीज को एक समय पे देखते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, तो जो उसका फील्ड जो क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं क्वांटम फील्ड, उसका पावर होता है 100 × 100। नाउ दैट इज 10,000। इमेजिन। समझो यहाँ पे फेसबुक पे इफ वी हैव 1,000 पीपल, होपफुली आई एम थिंकिंग दैट अगले कुछ दिनों में 1,000 लोग आ जाते हैं। 1,000 × 1,000 इज 1 मिलियन। वो प्रेयर्स कभी वेस्ट नहीं होंगे। उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी, उससे धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। सी पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक देयर चेंजेस, राइट? डॉक्टर्स आर ट्राइंग, साइंटिस्ट आर ट्राइंग, एवरीबडी इज ट्राइंग। हम लोग कम से कम घर पे बैठ के प्रेयर्स तो कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, पॉजिटिव चीजें कर सकते हैं, जिससे कि पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया में हमारा कुछ तो असर होगा। आई कैन गारंटी यू देयर हैज बीन रिसर्च डन। 10,000 monks together, they sat, in Japan. Actually, this experiment was done in Japan. 10,000 monks ने एक साथ में बैठ करके एक्सपेरिमेंट किया था मेडिटेशन का। और जब उन्होंने एक साथ में मेडिटेशन किया, उन्होंने देखा कि पूरे प्लेनेट का वाटर का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बदल गया। आप बिलीव नहीं करोगे ये चीज। इनफैक्ट डॉक्टर मसारो इमोटो ने तो पूरा रिसर्च किया था कि हमारी सोच, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारे माइंड में जो हम पिक्चर्स देखते हैं उससे पानी के ऊपर क्या असर होता है। और उन्होंने क्लियरली प्रूव किया कि हमारी सोच, विचार और जो माइंड में पिक्चर्स देखते हैं उससे पानी के ऊपर गहरा असर होता है। और ये पानी की मेमोरीज दे स्प्रेड अक्रॉस द अक्रॉस द प्लैनेट। तो हमारा ये एक मकसद है इस छोटी सी एक्सरसाइज का कि वी शुड ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज ऑन द प्लैनेट। द डॉक्टर्स, नर्सेज, दे आर वर्किंग ट्रिमेंडसली हार्ड। हमारी एनर्जी से शायद उनको वो रिसर्च जल्दी उनको मिल जाए, या फिर वैक्सीन जल्दी डेवलप हो जाए, और या तो जो लोग एक्चुअली परेशान है उनको थोड़ी सी हीलिंग मिल जाए। सो व्हाई नॉट डू आवर बेस्ट, राइट? ओके, सो वन इज स्टॉप रीडिंग ऑल द नेगेटिविटी। सेकंड इज डू सम प्राणायाम एंड योगा। Third is start reading some good books. I am reading a very beautiful book right now, which is called 5 a.m. Club by Robin Sharma. I would like to recommend this book. It is a beautiful book, 5 a.m. Club. इससे क्या होगा? You will develop yourself to be a much more powerful individual. Okay, and you will also learn how the most successful people. This is written by Robin Sharma. Okay. You will understand how the most successful people in the world become successful by getting up at 5 a.m. in the morning. तो फिलहाल कुछ करने का नहीं है, फिर भी हम लोग, मैं, मेरी वाइफ, मेरी डॉटर, हम लोग 5 बजे उठते हैं और दिन भर इतना सारा काम होता है कि समझ में नहीं आता दिन कहाँ निकल गया। So I want each one of you to spend your days like that, okay? Because when you do that, you will feel really good at the end of the day, and we'll only generate more positive vibes in this planet, okay? So start reading books. 5 a.m. is a very good book. दूसरा एक द सीक्रेट है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय इब्राहिम, बाय जेरी एंड एस्टर हिक्स, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। आपको जो भी अच्छा लगता है, कोई भी एक किताब लेकर के उसको पढ़ना शुरू करिए। ओके, सो यू जनरेट मोर पॉजिटिविटी। वॉच इंस्पिरेशनल वीडियोस ऑन यूट्यूब।
तो YouTube पे मेरे भी बहुत सारे वीडियोस है, खास करके माइंड के बारे में नॉलेज लीजिए, क्योंकि माइंड ही को तो संभालना है। तो मेंटल वेलनेस हमें रखना है इस समय के दौरान। We need to keep our minds in the right place, deal with anger, fear, worry, tension, anxiety, stress. All of this we need to deal with. And that is why understanding your mind and learning how to keep your mind calm and peaceful and in a joyful state is very important while all these problems are happening outside. Okay. And there is one more thing that I'm going to teach you before we close the day and do the meditation. That technique is called preventive tapping. Now, I have already uploaded a video on Facebook and also on my YouTube channel where you will find मैंने सिखाया कि tapping क्या होता है. Okay, this tapping is basically known as emotional freedom techniques, or it is also known as tapping. मैंने यहाँ पे टाइप किया है. This is one of the most powerful techniques to remove negativity from the mind. अभी मैंने आपको कितना भी बोला ना, आधे घंटे से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हमने माइंड में से नेगेटिविटी निकाला नहीं तो अनफॉर्चुनेटली ये सारा ज्ञान सेशन जैसा हो जाता है, so it's good to hear, but how do you take it out from the system? That's the question. हम अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, उसका असर थोड़ी देर रहता है और फिर से हम बैक टू नॉर्मल चले जाते हैं. तो हमारा गोल ये है कि ये नेगेटिविटी निकाल देना माइंड में से. एंड मैंने करीब करीब 20 साल इसके ऊपर रिसर्च किया ऑन द ह्यूमन माइंड. और ये रिसर्च के बाद मुझे ये टेक्निक सबसे बढ़िया इसलिए लगता है बिकॉज इट इज वेरी इजी टू लर्न, और आप किसी और को भी सिखा सकते हो, और उनको करीब करीब 3 से 4 मिनट में रिलीफ मिल जाता है. ओके, इस टेक्निक को हम कहते हैं इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स, और इट इज ऑल्सो नोन एज टैपिंग. वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक. तो हम ये 21 डेज में इस टेक्निक को बहुत डिटेल में सीखेंगे. जनरली हम लोग इसको वर्कशॉप्स में सिखाते हैं, बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू शेयर दिस टेक्निक विद द वर्ल्ड, बिकॉज ये टेक्निक जो लोग जानते हैं वो ना तो कभी डिप्रेशन में जाएंगे, ना उनके माइंड में कभी नेगेटिविटी आएगी. पुरानी चीजों जो माइंड में पकड़ के रखते हैं हम लोग, पास्ट बैगेज जिसे कहते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां होती है, वो भी माइंड में से निकल जाएगी. and you will see that you are a much more fitter person physically, mentally, emotionally, spiritually. सब एंगल से आप फिटनेस में आ जाओगे. और फिटनेस में आप आ जाते हो तो क्या होगा आपको पता है, आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगेगा. एंड व्हेन योर इम्यूनिटी इज हाई, नथिंग ऑन दिस planet can really affect you. Okay. Now, in today's situation, even though your immunity may be high and you be very strong and the coronavirus may not be affecting you, but you can still be a carrier. Okay, so don't take the risk of leaving your house, because ये सबसे पहले जब ये कोरोना वायरस आया तब मेरे माइंड में ऐसा था, यार मेरा इम्यूनिटी सिस्टम तो बहुत हाई है, एंड मैं बीमार ज्यादातर पड़ता ही नहीं हूँ पिछले 12-13 साल से. तो आई हैव नेवर फॉलन सिक, नेवर गो टू डॉक्टर्स. तो फिर ये मुझे कैसे असर करेगा. बट देन आई रियलाइज दैट आई कुड बिकम अ कैरियर. मतलब कोई अनफेक्टेड इंसान ने मुझे हाथ लगा दिया तो मैं कैरी करूंगा, तो ऑब्वियसली इट कैन अफेक्ट पीपल अराउंड मी, इट कैन अफेक्ट माय ओन फैमिली, इट कैन अफेक्ट एनीबॉडी एल्स. सो आई नीड टू बी केयरफुल वेदर आई हैव हाई इम्यूनिटी और नॉट. लेकिन हमारा गोल ये होना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी बढ़ जाए. इतने दिनों में जितने दिन हम घर पे है, हमारा इम्यूनिटी उस लेवल पे पहुंचना चाहिए कि हमें कोई भी वायरस असर ना करे. तो नाउ वो वीडियो तो आप देखिएगा ही जो फेसबुक में मैंने शेयर किया है, लेकिन लेट मी शेयर a few things with people who are already online so that you can actually start doing these techniques from tomorrow morning. तो हम एक प्रोसेस करेंगे, बहुत सिंपल प्रोसेस है जिसका नाम है प्रिवेंटिव टैपिंग. नेम इज कॉल्ड प्रिवेंटिव टैपिंग. टैपिंग इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट एक्चुअली, बट ये प्रिवेंटिव टैपिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम, जैसे हम शरीर को कैसे साफ करते हैं, रोज वी गो टू टेक अ नाइस बाथ एंड वी क्लीनिंग आवरसेल्व्स एवरी डे, इसी तरह माइंड क्लीन करने का ये टेक्निक है. अभी इसके लिए हमारे बॉडी के ऊपर 9 पॉइंट्स है. देयर आर 9 पॉइंट्स ऑन द बॉडी. दीज 9 पॉइंट्स आर कॉल्ड मेरिडियन पॉइंट्स. ओके, मेरिडियन पॉइंट्स. मेरिडियन पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक्यूपंक्चरिस्ट यूज करते हैं. एक्यूपंक्चर वाले क्या करते हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, वहां पे वो नीडल्स लगाते हैं. तो हम नीडल्स लगाने के बदले में हम क्या करेंगे, वी गोइंग टू डू जेंटल टैपिंग. बहुत हल्के से
टैपिंग करेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर। ओके, तो रिसर्च ये कहता है कि जब हम इन पॉइंट्स के ऊपर टैपिंग करते हैं तो हमारे माइंड में जो भी नेगेटिविटी हो वो निकल जाती है। इसके पूरा पीछे पूरा साइंस है, वो साइंस मैं कल आपको समझाऊंगा, क्योंकि टुमारो माय एंटायर हाफ एन आवर विल बी ऑन फोकसिंग ऑन व्हाट इज ईएफटी, हाउ इट वर्क्स, इसको हम यूज करके हमारे माइंड में से पूरी नेगेटिविटी कैसे निकाले ताकि हमारा माइंड एक हाईएस्ट लेवल पे काम कर सके। ओके, सो आज के लिए आप खाली मेरा विश्वास करना है और मैं आपको जो बताऊं उसको आपको करना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है इसको हम कहते हैं कराटे चॉप पॉइंट। अभी देखिए चॉप हम कैसे मारते हैं, ऐसे मारते हैं। तो ये जो यहाँ पे एरिया है इसको हम कहते हैं कराटे चॉप पॉइंट, और हमें अपने सेकंड हैंड की 4 उंगलियों को मिला करके ऐसे से टैप करना है, जेंटल टैपिंग। देखिए ऐसे साइडवेज। ओके, आप इसको लेफ्ट हैंड पे भी कर सकते हो, आप इसको राइट हैंड पे भी कर सकते हो। तो कोई भी एक हाथ पे इसको टैपिंग करना है और इसको 35 बार टैप करना है, 35 टाइम्स। कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ओके, जस्ट टैप ऑन इट 35 टाइम्स। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है इसको हम कहते हैं आईब्रो पॉइंट। अब ये आपका आईब्रो है, इसको जो स्टार्टिंग जो एरिया है इसको हम कहते हैं आईब्रो पॉइंट। ये राइट साइड में भी होता है, लेफ्ट साइड में भी होता है। इसको टैप करने के लिए हम 2 उंगलियां यूज करेंगे, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, और हल्के हाथ से हम इसको टैप करेंगे। आप इसको एक हाथ से भी कर सकते हो और 2 हाथ से भी कर सकते हो। तो इसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? आईब्रो पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड आउटसाइड द आई, आंख के बराबर बाहर। यहाँ पे भी हम 2 उंगलियां यूज करेंगे और एग्जैक्टली आईज के बाहर टैप करेंगे। इस पॉइंट को हम कहते हैं साइड ऑफ द आई और आउटसाइड द आई, आंख के बाहर वाला पॉइंट। अब यहाँ पे आप टैप करोगे ना तो आपको हड्डी वाला सेंसेशन आएगा, एक बोनी सेंसेशन आएगा। देयर इज अ बोन हियर, दिस इज कॉल्ड साइड ऑफ द आई पॉइंट। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड अंडर द आई पॉइंट। Here also you will feel a bony sensation. Then the next point is called under the nose point. Next point is called the chin point. एक्चुअली इसको हम चिन कहते हैं, लेकिन पॉइंट हमारा इस क्रीज के ऊपर होता है, यहाँ पे जो लाइन होती है उसके ऊपर एक पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं चिन पॉइंट। उसके बाद जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं कॉलर बोन। यहाँ पे जो कॉलर होता है इसके बराबर यहाँ पे एक बोन होता है, इसको कहते हैं कॉलर बोन, लेकिन पॉइंट उसके 1 इंच नीचे है। अब इसको ढूंढने जाए उससे अच्छा है कि पूरा हाथ लेकर करके उसको ऑल इज वेल करना है। 45 डिग्रीज पे हाथ लेना है और इसको यहाँ पे पॉइंट पे टैप करना है। इसको हम कहते हैं कॉलर बोन पॉइंट। यू कैन टैप इट ऑन द लेफ्ट साइड, यू कैन टैप इट ऑन द राइट साइड, एनी साइड इज फाइन। दिस इज कॉल्ड द कॉलर बोन पॉइंट। ओके, देन इसको हम क्या कहते हैं? आर्मपिट। आर्मपिट के 4 इंच नीचे यहाँ पे जाना है, इसको कहते हैं अंडर द आर्म पॉइंट। पूरा हाथ यूज करना है, फुल हैंड यूज करना है। ओके, फुल पाम, एंड जस्ट टैप लाइक दिस अंडर द आर्म पॉइंट, 4 इंचेस बिलो द आर्मपिट। द लास्ट पॉइंट इज टॉप ऑफ द हेड। यहाँ पे बहुत सारे मेरिडियन पॉइंट्स है, तो आप पूरे हेड के ऊपर ऐसे 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 टैपिंग करना है। ओके, दिस इज कॉल्ड टॉप ऑफ द हेड पॉइंट, राइट? So let me now just share all the 9 points with you again. Once again, the first point is called karate chop point. Second point is called eyebrow point. Third point is called outside the eye or side of the eye. Fourth point is under the eye, under the eye. Fifth point is under the nose. Sixth point is chin point on the crease here. Seventh point is collarbone point. Eighth point is under the arm point, 4 inches below the armpit. And ninth point is top of the head. ओके, तो हम इन पॉइंट्स को अभी कैसे यूज करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मॉर्निंग में उठ के हमें क्या करना है? सबसे पहले फ्रेश हो जाना है और उसके बाद आपको एक बुक बनानी है जिसका नाम है ग्रेटिट्यूड जर्नल। ओके, प्लीज टेक अ नाइस ब्यूटीफुल नोटबुक और इसका नाम होगा जर्नल। क्या कहेंगे इसको? ग्रेटिट्यूड जर्नल।
1 second please, the camera. Yes. ओके, सो ग्रेटिट्यूड जर्नल, इस नोटबुक में हम क्या करेंगे, 7 मिनट्स के लिए आप लिखोगे कि आप किस चीज के लिए आभारी हो. व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे. So, even though there is so many problems going on outside, do you all agree that there is something to be grateful for in our life? There are so many things in our life for which we can be grateful. Can some of you type out what are you grateful for today? कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए आप grateful हो? Is anybody typing? What are the things you can be grateful for? Okay, since we have less time, let me give you a few ideas. The first thing you can be grateful for is कि हम आज जिंदा है. Yeah, our eyes opened up in the morning. So we can be grateful that we are alive. We can be grateful for a fit and fine body. Gurmeet says fresh air. Mansi says life, of course. So there are so many things. Your family, your home, which you are staying in. हम रोज खाना खाते हैं. 20 Dhaval says that I'm going to spend 21 days with my family. I have enough money to take care of my things. So there are so many things that you can be grateful for, right? तो हम क्या करेंगे, सुबह उठ करके कम से कम 7 to 10 मिनट्स के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करेंगे. थैंक यू गॉड that I'm alive today. Thank you God I have a fit and fine body. Thank you God that I live in a wonderful house. Thank you God that I have enough to eat. जिस चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो, पूरे फीलिंग्स के साथ में ग्रेटिट्यूड को करना है. ये एक सबसे पावरफुल एक्सरसाइज है जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी तुरंत ही बदल जाएगी. Okay, so please do this for 7 to 10 minutes. Very good. There are so many good answers. Thank you so much, guys. Wonderful participation. Awesome. तो 7 to 10 minutes gratitude करने के बाद step number 1, write gratitude for 7 to 10 minutes. अगर आप अच्छा लगता है तो थोड़ा और समय कर सकते हो उसको. Okay. Step number 2. Just hold on. Can you guys hear me? ओके, सो आई डोंट नो, समथिंग हैपेंड इन बिटवीन. मैंने लगा दिया तो इसलिए शायद वो चेंज हो गया. बट लेट्स बिगिन. So after you do 7 to 10 minutes of gratitude, the next step you're going to do is preventive. Okay, एक बार फ्रेश हो गए, माइंड को फ्रेश कर लिया, तो हम प्रिवेंट टैपिंग करें. प्रिवेंट टैपिंग में क्या करें, सबसे पहले इसको हम 35 टैप करेंगे. ओके, टैप 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 35 टाइम्स टैपिंग करेंगे इसको. और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, हर पॉइंट के ऊपर आप 7 से 10 बार टैपिंग करेंगे. बाद नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट. और जब भी आप टैपिंग कर रहे हो तो आपके माइंड में जो चिंता है, आपके काम के बारे में, आगे क्या होगा, और भी ज्यादा दिन बंद होगा तो क्या होगा, मतलब यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी थॉट्स इन योर माइंड, लेकिन उस समय जो भी आपके माइंड में आ रहा है, चिंताएं, वरीज, टेंशंस, उसको सबको आने दीजिए बाहर. लेट इट जस्ट कम आउट. ओके, डोंट ट्राई टू स्टॉप इट एंड डोंट ट्राई टू कंप्रेस इट और पुश इट डाउन.
लेट ऑल दोस वरीज एंड टेंशंस एंड एंजाइटीज कम अप, जो भी टेंशन है वो आने दो, और आपको सिर्फ टैपिंग करते रहना है इसके ऊपर, उसके बारे में सोचते जाना है, टैपिंग करते जाना है, सोचते जाना है, टैपिंग करते जाना है, सोचते जाना है, टैपिंग करते जाना है। हर पॉइंट के ऊपर आप कितनी बार करोगे? 7 to 10 टाइम्स। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, दुख लग रहा है, टेंशन हो रहा है, कोई भी इमोशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इमोशन हो, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक से सारे इमोशंस निकल जाएंगे। ओके, सो जस्ट कीप टैपिंग 7 to 10 times, 7 to 10 times, 7 to 10 times, 7 to 10 times, 7 to 10 times। और फिर यहाँ पे रुकना नहीं है, टॉप ऑफ द हेड इज द लास्ट पॉइंट, राइट? लेकिन यहाँ पे रुकना नहीं है, फिर से आईब्रो पॉइंट पे आना है। कराटे चॉप करने की जरूरत नहीं, कराटे चॉप सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली टॉप ऑफ द हेड पॉइंट से डायरेक्टली आईब्रो पॉइंट पे आएंगे, डायरेक्टली कम टू द आईब्रो पॉइंट, एंड देन जस्ट कीप टैपिंग, कीप टैपिंग, कीप टैपिंग। जो भी थॉट्स आते हैं वो आने दो, टैपिंग करते जाओ। अभी भी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी चिंता है उसको माइंड में सोचते जाओ, टैपिंग करते जाओ, सोचते जाओ, टैपिंग करते जाओ। इस तरह से आप बहुत सारे राउंड्स लोगे, करीब करीब 5 to 7 मिनट्स और मैक्सिमम 10 मिनट्स। आप उसको टैपिंग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, बीच में रुकना नहीं है। यू हैव टू कीप ऑन टैपिंग फॉर मल्टीपल राउंड्स, at least 8 to 10 rounds, and then after that what you do is, the Dimple says there is no sound. Can everybody else hear me, please? Just type yes if you can hear me. Anyone, if you can type yes if you can hear me. Guys, can you hear me? Okay, great. Rohit, thank you for confirming. So, just keep doing this for almost about 9 rounds, और उसको फिर हमें कंप्लीट कैसे करना? वी नीड टू टेक 3 deep breaths। 3 सांसें लेनी है, नाक से लेना है, बाहर निकालना है। ओके, सो द वे यू डू इट इज लाइक दिस। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तरह से 3 गहरी सांसें लेनी है, से अंदर, मुंह से बाहर, एंड यू गोइंग टू डू दिस फॉर अबाउट 5 to 10 मिनट्स। और 3 गहरी सांसें लेने के बाद आप क्या करोगे? थोड़ा सा पानी पियोगे। तो अंडरस्टूड दीज टू प्रोसेसेस। मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड करना है 7 to 10 मिनट्स। उसके बाद आपको ये टैपिंग, जो प्रिवेंटिव टैपिंग सीक्वेंस इसको कहते हैं, इसको हम करीब 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 5 से 10 मिनट के लिए, कम से कम 8-9 राउंड होंगे, उतने देर में 5 से 10 मिनट हो जाएंगे। उसके बाद 3 गहरी सांसें लेनी, 3 deep breaths, एंड देन आफ्टर दैट यू हैव अ लिटिल वाटर, एंड उसके बाद आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए। सो याकूब अली इज आस्किंग व्हेन डू वी एक्सरसाइज? इसके बाद आप एक्सरसाइज करिए। सो एक्सरसाइज इज वेरी मच रिक्वायर्ड। डू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ रिगरस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज को आप किसी भी तरह कर सकते हो। अभी घर में ही करना है तो या तो आप एक ही जगह पे जॉगिंग करो, एक ही जगह पे मतलब फास्ट वॉकिंग करो घर के अंदर, या फिर योगा करो, प्राणायाम करो। योगा एंड प्राणायाम इज हाईली रेकमेंडेड। ओके, रामदेव बाबा का there is a beautiful 45 minutes sequence available where he teaches you how to do pranayam, okay, pranayam and a couple of asanas. So you can do that for about 45 minutes to 1 hour. इससे आपके मॉर्निंग के 2 घंटे अच्छे से निकल जाएंगे, करीब करीब 1.5 से 2 घंटे अच्छे से निकल जाएंगे, and you will see the amount of energy that you will be able to generate will actually push you throughout the day.
और सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाएगी और आप देखेंगे माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा। अब दिन के समय कभी भी अगर आपको फिर से नेगेटिविटी उठ रही है, एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, तो चिंता मत करिए, होने दो उसको। आप फिर से इसको 35 टाइम्स टैप करिए और फिर से ये सारे पॉइंट्स को 7 to 10 टाइम्स टैप करते जाइए। आने दो चिंता, जितनी आनी है आने दो, और इसको टैपिंग करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक 3 4 5 मिनट टैपिंग करिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, गॉन, एंड हैव सम वाटर। इस तरह से जितनी बार चाहो आप इसको दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे आपका माइंड हमेशा पीसफुल रहेगा, हमेशा शांत रहेगा। ओके, so now I'm going to, and then after that obviously there are lots of other things you can do, read books, spend time with your family। बाकी सारी चीजें हमें जो करनी है वो करते रहेंगे। हम बहुत सारी चीजें कल फिर से डिस्कस करेंगे। वी गोइंग टू मीट अगेन sharp at 9:30 tomorrow, but now before we end we are going to basically do a meditation। Okay, so I want all of you to gently sit in a relaxation position first। अच्छे से बैठ जाइए। Kamal is asking, suggest a book on parenting. I will have to suggest, but I'll give you a few parenting tips tomorrow. Tomorrow, day after, I'll do as we move forward. Okay, Shama. So until then, I'll see if I can find a good book for you as well. Okay, great. So एक अच्छे से relax position में बैठ जाइए। We're going to do a beautiful meditation. By the way, meditation भी मैंने YouTube पे शेयर किया है। आज अभी Facebook में भी शेयर करूंगा। कल से हम एग्जैक्टली इस मेडिटेशन को 10 o'clock आप या तो मेरे साथ लाइव करिए और या तो आप इसको अपने पीसी में इसको सुनिएगा, अपने फोन में से सुनिएगा। बट वी आर गोइंग टू डू द मेडिटेशन एग्जैक्टली एट 10 p.m. starting tomorrow, and please spread this to as many friends as possible। That's the only request I have, is that spread it to maximum number of people, because these techniques are really they give a lot of relief from anxiety, fear, tension, stress and all of that। Okay, so let's sit in the relaxation position। Make sure your hands are not crossed. Do not have your hands crossed. Okay, put them on your laps, and you can keep your palms facing upwards, or you can also do the dhyan mudra and put your palm facing upwards like this. Put them on your laps. Keep your spine as straight as possible. Then gently close your eyes and start taking deep long breaths। लंबी और गहरी सांसें लेना शुरू करिए और अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। महसूस करिए कि सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। सांसों के ऊपर ध्यान देने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने नॉस्ट्रिल के ऊपर ध्यान दीजिए। पे अटेंशन टू वन ऑफ योर नॉस्ट्रिल्स so that you can actually feel the air is going in and it is coming out, going in and coming out। सारा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखिए। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स बोथ योर हैंड्स एंड योर लेग्स completely। Relax all the bones, all the muscles, all the tissues, all the cells of your hands and your legs completely। Just let them go loose। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने स्टमक के मसल्स को ढीला छोड़िए। अपने सीने के मसल्स, चेस्ट मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए और आपके पीठ के सारे मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए।
Relax, relax, relax. ना पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर रखें। सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर निकालते हुए अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर मसल्स, रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर नेक। गर्दन के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए एंड रिलैक्स ऑल द मसल्स ऑफ योर फेस कंप्लीटली। अपने चेहरे के सारे मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। और अब आपका पूरा शरीर सिर से लेके पांव तक पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। Just feel a wave of relaxation passing all the way from the top of your head, going all the way to the bottom of your feet, right up to your toes, passing through every single cell of your body, making sure your entire body is completely relaxed. Now that your body is relaxed, we will now relax your mind. For relaxing the mind, I'm going to count down from 10 to 1. एंड जैसे जैसे मैं 10 से 1 की गिनती करूंगा आपका माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएगा। So starting with 10, 9, 8, going deeper and deeper, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Now transport yourself to one of the most beautiful places on planet Earth. अपने आप को एक बहुत ही सुंदर जगह में ट्रांसपोर्ट कर लीजिए और महसूस करिए कि आप उस सुंदर जगह में पहुंच चुके हो। यू ऑलरेडी रीच दैट ब्यूटीफुल प्लेस। And as you experience that beautiful place, your mind becomes more and more peaceful. Feel the beauty of the place. Feel the warmth of the sunlight. Sunlight को थोड़ा सा experience करिए. Feel the cool breeze on your face. Hear the birds chirping in the sky. Smell the fragrance of the beautiful flowers around you. और जैसे ही आप इस पूरी जगह को महसूस करते हो, आपका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है। At this stage, both your body and your mind are now completely relaxed. You are now in the deep alpha state. The alpha state of mind is a very deep state of mind where you are connected with your inner self or your higher self. You're also connected to the infinite intelligence that resides within you. Now, visualize that wherever you are in that beautiful place, see that your own God is there. अपने गॉड को देखिए आपके सामने है। First thing we're going to do is express gratitude for whatever we have in our life. तो अपने गॉड को देख करके उनको आभार प्रकट करना है, हमें ग्रेटिट्यूड बताना है, उनको थैंक यू कहना है कि थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे that I'm alive today. Thank you for my amazing body, which is fit and fine, my infinitely powerful mind, which helps me solve all my problems, my family, the people in my life are always there to love and support me for everything. Thank you, God, for the house that I live in, the car that I drive, office that I work in,
जो लाइफ में मेरे जो पैसे है जिससे मेरा घर चलता है उसके लिए थैंक यू. So I'm truly grateful for whatever you've given to me in my life. Thank you, thank you, thank you. Please express your deepest gratitude to God. We are indeed very lucky and blessed to have so many things in our life. There are so many people on this planet who are right now stranded, who don't have the money, who don't have hands, legs, cannot see. We are very lucky, so we should be really, really thankful to God for what we have in our life. Now, we are going to seek forgiveness from God. The reason we need to do this, हमें परमात्मा से माफी मांगनी है, क्षमा मांगनी है. ये इसलिए क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, आज के तारीख में हमारे लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से ही हो रहा है. एनीथिंग दैट हैपेंस इन अ लाइफ ऑलवेज हैज अ रीजन. इट्स ऑलवेज कॉज एंड इफेक्ट. द लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग. हमारे जीवन में जो कुछ भी आया है वो इसलिए आया है क्योंकि हमने शायद कुछ ना कुछ तो किया था पास्ट में, जाने अनजाने में, जिसकी वजह से करंट सिचुएशन आई है. Look at your God and once again seek forgiveness from God. तो मैं जो प्रेयर बोल रहा हूँ मेरे साथ में मन में बोलिएगा that dear God, अगर मैंने किसी को भी हर्ट किया है, जाने अनजाने, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस जन्म में या पिछले कोई भी जन्म में, अगर किसी को भी मैंने मेरे शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा और कर्मों के द्वारा, एक्शंस के द्वारा किसी को भी अगर मैंने हर्ट किया है तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. मुझे खुद पता नहीं कि मैंने शायद क्या किया होगा, but there is definitely something I have done. So please forgive me. ये जो करंट कोरोना पेंडेमिक है, दिस इज caused by collective consciousness. It is not with one person. बहुत सारे लोगों ने जो कर्म किए हैं उसका ये हमें रिजल्ट मिला है. तो हम इतने जितने सारे लोग मिल करके माफी मांगते हैं तो उसका एक पावर अलग होता है. रिमेम्बर गॉड इज वेरी काइंड, वेरी ग्रेशियस. अब विजुलाइज करिए कि गॉड की ओर से एक बहुत ही सुंदर सफेद रंग की लाइट आ रही है, डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम गॉड. दिस लाइट इज कवरिंग यू फुल्ली और आपके बॉडी के हर सेल को छू रहा है. एंड इट इज dissolving all those karmas from the past which are creating a problem in your life today. और ये भी विजुलाइज करें कि ये जो व्हाइट लाइट है ये हमारे पूरे प्लेनेट को कवर कर रही है, और पूरे प्लेनेट को जो भी कोरोना वायरस के इफेक्ट्स है, कोरोना वायरस है, वो सारा वायरस इस लाइट के साथ में मिल जाता है, actually merges with this light, becomes part of the divine light, and it is no longer harmful. And this beautiful white shining light is always protecting our entire globe. Beautiful white shining light protecting our entire globe. और महसूस करिए कि जो सफेद रंग की लाइट है, it is healing everybody on the planet. Okay? And because God is so gracious और वो हमें हमेशा प्यार करते हैं, हमें माफ करते हैं, तो उनसे उनको फिर से थैंक यू कहना है. थैंक यू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर ग्रेस. वंडरफुल. नाउ वी गोना डू अ कपल ऑफ एफर्मेशंस. हम कुछ एफर्मेशंस करेंगे. अल्फा अवस्था में जो भी एफर्मेशंस करते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं, वो हमारे जीवन में सच बनकर ही रहता है. तो हम कुछ एफर्मेशंस करेंगे जो मैं बोलूंगा और आप मेरे साथ बोलेंगे, बोलेंगे. आई एम ऑलवेज सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड. इन शब्दों को जब आप बोलते हो तो पूरे विश्वास के साथ बोलना है, पूरे कन्विक्शन, पूरे बिलीफ के साथ बोलना है. आई एम ऑलवेज सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड. माई फैमिली इज ऑलवेज सेफ एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड. महसूस करिए कि आपका पूरा फैमिली सेफ है, परमात्मा हमेशा हमारे साथ में है. The world is always safe and divinely protected.
I know the current situation is a very challenging one, but this too shall pass. I know that the current situation is very challenging, but I have full faith that this too shall pass. While I am not able to do my work at the fullest capability for the next couple of weeks, I know I am financially secure. भले ही मैं कुछ हफ्तों के लिए काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी फाइनेंशियली पूरी तरह से सिक्योर हूं. The world is now returning back to its normal state. The effects of coronavirus have completely gone and disappeared. The world is now returning back to its normal state of joy, happiness, peace, love, and compassion. Thank you, thank you, thank you. वंडरफुल. हमने एफर्मेशंस किए, अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे. और इस विजुअलाइजेशन में हम विजुअलाइज करेंगे कि मैं आपको कराता हूं, तो आप अपने माइंड में देखिए. माइंड में सिर्फ एक पिक्चर देखना है और ये देखना है कि अभी अभी आप उठे हो, सुबह हुई है और अभी अभी आप उठे हो. और जैसे ही आप फ्रंट डोर पे से न्यूज़पेपर उठाते हो, आप हेडलाइंस देखते हो कि फाइनली द वर्ल्ड इज नाउ रिटर्न बैक टू नॉर्मल. पूरे बड़े लेटर हेडलाइन है, द वर्ल्ड इज कंप्लीटली फ्री of coronavirus and we are now completely back to normal. तो ये न्यूज़ पढ़ के आप बहुत खुश हो, आपके सारे फैमिली मेंबर्स को आप सुनाते हो, आप अपने पूरे सोसाइटी में बेल्स एंड विसल्स की आवाजें सुनते हो, सब लोग इतने खुश है. इतना बड़ा चैलेंज हम सब ने मिल करके इसको पार किया है. So much gratitude to all the people who have been who contributed the medical entire medical fraternity, doctors, the nurses, the paramedical staff, जो रोज का जो हमें सर्व करते हैं, उन सब लोगों को थैंक यू. सब्जी वाले, दूध वाले, न्यूज़पेपर वाले, चाय सफाई करने वाले, जितने भी वो भाई बहन है, सबको बहुत ही हमारा ग्रेटिट्यूड है कि हमारा अर्थ हैज कम बैक टू नॉर्मल नाउ. आप देखते हो कि सड़कों पे फिर से वो एनर्जी, एंथुजियाज्म फिर से है. Lots of cars on the road. Everybody is going back towards their office. आप भी तैयार हो रहे हो, पूरी तरह से एक्साइटेड हो ऑफिस में जाने के लिए. आपके बच्चे भी रेडी हो रहे हैं स्कूल में जाने के लिए. लाइफ इज बैक टू नॉर्मल एंड यू आर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी दैट लाइफ इज नाउ कम बैक टू नॉर्मल. लेकिन सारा नॉर्मल होने के बावजूद देयर इज वन थिंग दैट वी नोटिस, दैट एवरी सिंगल स्मॉल थिंग वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर. बिकॉज अब हमें ये महसूस हो रहा है कि हर छोटी वो चीज जो शायद हमने पहले फॉर ग्रांटेड लिया था, उसके लिए आज हम बहुत ही थैंकफुल है. बिकॉज ये पूरे कोरोना वायरस के जो एपिसोड ने हमें ये सिखाया कि कुदरत के सामने हम कुछ भी नहीं है. वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ द नेचर. So we should always be very grateful for what we have in our life and always do goodness for nature. तो आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया फिर से नॉर्मल हो चुकी है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति स्ट्रांग हो चुकी है. और क्योंकि आपने इतना बड़ा ब्रेक लिया है, उसने ब्रेक को आपने बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया था और आप पूरी तरह से फुल्ली एनर्जाइज्ड, फुल्ली फिट, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, अपग्रेडेड स्किल्स, फैमिली के साथ में अच्छे रिश्ते, एक नई जिंदगी, एक नई उमंग के साथ में आप अपने एक नए जिंदगी को शुरू कर रहे हो. और आप देख रहे हो कि आपके अंदर जो उत्साह है, वो सारे जितने लोग हैं पूरे प्लेनेट पे, सारे लोगों में वही सेम उत्साह है.
but and you observe that there is so much of more love and compassion on this planet, so much of brotherhood, of helping one another, and you are noticing that this planet is now returning back to its true form of what was earlier known as Satyug. You can actually feel the transformation happening, and you're very thankful to and grateful to God कि जो ये बड़ा चैलेंज आया, लेकिन उसके बाद भी एक बहुत ही सुंदर सवेरा आया. And now you understand that maybe that big problem was to bring this goodness into our planet. That we had to slow down, really rethink our priorities. Now with that new feeling, new hope, starting your life again. You, your family, all the people in your world, everybody is very, very happy. Wonderful. And you're very, very thankful to God. और इसलिए आप आकाश की ओर देखते हुए look towards the sky and you're saying to thank you in a very big manner. Thank you, thank you, thank you, God, for everything. Wonderful. Now we're going to come back to our normal state. फिर से हम मेडिटेशन में से बाहर आएंगे. उसके लिए मैं 1 से 10 की गिनती करूंगा और 10 की गिनती पे जैसे ही आप अपनी आंखें खोलोगे तो आप पूरी तरह से फ्रेश महसूस करोगे, वेल रेस्टेड, और एक अच्छी नींद के लिए तैयार हो जाओगे. 1, 2, 3, 4, 5, coming out slowly, 6, 7, 8, 9. दोनों hands को rub करिए please. Rub your hands together, rub your palms together, put them on your eyes, and 10. Slowly take your hands off your eyes and gently open your eyes. Whenever you're ready, gently open your eyes. Feeling fresh, fully rested, and now ready for beautiful, deep, relaxing sleep. So thank you everybody for being with me for the last 1 hour. I hope that this session has been useful. कल से आप ये प्रैक्टिस को जरूर शुरू करिएगा और ये जो फेसबुक का वीडियो होगा आप बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि कल दूसरा सेशन होने से पहले let all of them take a look at this video, and also please put your comments of how you found this session so that it inspires me also to do this for the next 21 days. Okay, so before I end, on the 27th, I will not be conducting this session, or I can do it earlier in the day because 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक हमारा एक दूसरा वेबिनार है. That is for people who want to do work like me. So I do transforming work. I help people, live better lives. तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो you're all welcome at webinar. I will share on this the friends as well. So your comments and try to, join us on Friday evening also. In the meanwhile, sleep well and practice all those things I taught you, and then we'll connect once again tomorrow at 9:30. Share this with maximum number of people so that they can benefit out of these sessions. Okay, and I'd love to hear your experiences of this session. Thank you, thank you, thank you. Grateful for all of you being here. God bless you. Thank you so much.